Legends of valor, indomitable courage, and exemplary leadership. Tales of sacrifice that deserve a salute by every Indian and shall be remembered for times to come. These are the stories on which our tricolor flutters high up in the sky. Jai. In our first episode, we present to you the thrilling journey of a living legend, the Cobra of two Rajputana rifles, the Mahavir Chakravarti Naik Digendra Kumar. Born in the Sikar district of Rajasthan, Kumar's father was a warrior who endured 11 bullets in the Indo-Pak War of 1948. His grandfather, a martyr of the Azad Hind Fauj. As per him, getting into the army to serve his motherland was something that came quite naturally. मेरी माँ एक फ्रीडम फाइटर की बेटी थी और मेरे नाना जी आजाद हिंद फौज में शहीद हो चुके थे। तो उसका एक जुनून था कि मेरे पापा का बदला मेरा बेटा ले। और मेरे पिताजी थे जिनको 1948 में पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर 11 गोलियां लगी थी मेरे पापा के। वो ये कहता था, बेटा तुझे सेना में भर्ती होना है। मेरे पिताजी हमेशा बचपन से ये कहते थे कि वीर भोगा वसुंधरा, धरती पर वीर किसी चीज का टेस्ट ले सकता, मेरे बच्चे हो वीर ही बनना तुम्हारे को हमेशा। तो उसी दिन मन में ठान ली। He joined the army at a mere age of 16, but little did he know that just 2 years into service, he'll be selected for the Indian Peacekeeping Force, the IPKF, for resolving the Sri Lankan Civil War. LTTE, a militant organization, took control over the Jaffna Peninsula, and after years of unsuccessful attempts by the Lankan army, the Indian army finally routed LTTE and gave Jaffna back to Sri Lanka. But we lost 214 of our brave men in the same. Kumar, who was one of the personal bodyguards of the then Lieutenant General A.S. Kalkat, got a fair chance to manifest the commando that he was. कलकट साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड था। पीछे वाली गाड़ी में था, एक एलटीटी गुड़िया के नीचे से मतलब ग्रेनेड ऐसे ऊपर फेंका और मैंने उसी को कैच करा और उसी को ठोक दिया। तो वो उसकी गर्दन उठ गिरी, वो धड़ 2-3 सेकंड बाद में जमीन पर गिरा। तो जनरल कलकट को बोला रहे ये तो कोबरा से भी खतरनाक है। उस दिन बाद में भारतीय सेना मुझे कोबरा का नाम ही दे दिया और मेरी टीम को भी कोबरा कहते थे। मेरा खुद का कोड नेम भी कोबरा रखा। Yet another such story of Naik Digendra Kumar is of his encounter with the terrorists in Kupwara in 1993, for which he was awarded with the Sena Medal, and of recapturing Hazratbal Shrine from terrorists in 1994. ये टूर्नामेंट ये कई उग्रवादी मार चुके हैं पूर्वाजी। 13 मई को भी सिर्फ 4 उग्रवादी मारे थे, ताजा ही बात है। और 13 मई को वहाँ लड़ाई शुरू हो गई थी। तो हमारी बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ थे। तो उस टाइम ज्वाइन ही करेंगे, बटालियन कमांडर बने ही थे और वो उन्होंने हमारी बटालियन को कुपवाड़ा टेक दिया ग्वालियर से। तो जैसे ही हमें कुपवाड़ा में गए, वहाँ जाते मैंने कोबरा टीम में हमने 4-3 उग्रवादी मारे, बजा के दौड़ गए। उसके बाद वो उस पूरी वैली में टू राजदीप हो गया। तो बहुत खतरनाक बटालियन है, उग्रवादियों को पीछा करके मारती है। बस आर्मी कमांडर ने देखा कि टू राजदीप तगड़ी बटालियन कारगिल में बुलाया था। Close came the time of 1999, the Kargil War, Operation Vijay as we call it. Kumar had no idea what he was going to face, but a commando is all set for surprises. During this conflict, winning back Toroling was a pivotal breakthrough that our forces were aiming at. It was a dominant feature with clear sight and aim at National Highway 1D, and the enemy had its 11 of established bunkers with artillery support. The hostile terrain, with favorable positions on the Pakistani side, rendered the loss of our men. Major Rajesh Adhikari and Major Vivek Gupta were both awarded the Mahavir Chakra posthumously for their gallantry and sacrifice. Nearly 3 weeks into assault, the Charlie Company of 2 Raj Rif was finally given the task of recapturing point 4590 on Toroling Hill. Kumar proposed a strategy that the enemy could never think of. तो मैं खड़े आमो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल ग्रुप कोबरा सर। जवाब बेटे क्या इरादा तेरा? देखो सर
तोलोलिंग पर झंडा काटने का है। तोलोलिंग ऐसे है और यहाँ से पीछे से मैं जगह देख के आया, वहां से मैं रस्सा बांध के मेरे 10 कमांडो पीछे ले जा सकता हूँ। 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आकर के अपने शिव साहब को रिपोर्ट दे दी। वो सर मैंने वो काम कर दिया। बोले तुम जनरल साहब को बता भाई। बोले आ गया बेटा को दिगेंद्र को। हाँ आ गया सर। तो बोले क्या प्लान है? बोले सर उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बैंकर बने हुए। बोले तेरा क्या इरादा है? बोले सर हम 10 आदमी पीछे जा करके उन सारे बैंकरों का रूप बदली करा सकते हैं। A team of 10 commandos climbing up the hill from dead end, all with ropes. With 5,000 feet chasm below and more than 14 hours of climbing, the team would finally be in proximity of the enemy bunkers. On 12th of June 1909, in sheer darkness of night, the 18 grenadiers set up the stage for a final strike. The battle was against overwhelming odds, and by then, we had already sacrificed our men in 3 previous attempts. 12 जून को सुबह पहुंच जाता हूँ। 12 जून को पूरे दिन रेस्ट करता हूँ और शाम को 8:30 बजे 18 हेड ग्रेनेड और 350 के 47 की मैगजीन भरे हुए और एक पिस्टल एक कमांडो डाइगर को साइनाइड में दबाया होता है, वो हथियार और एक 47 राइफल लेकर के वो भगवान को याद करके और अपने साथी को ये बोला वो दोस्त को पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ा रिक्स लेगा, तो वो रिक्स बना जीत रही लोग। तो बोले वाह भाई कमांडर धन्य हो तू। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पहले बैंकर को बर्बाद करूंगा। तो सुल्तान गौरलाल भाकर बोलता दूसरे को मैं बर्बाद देगा। तो मेरे मेजर में गुप्ता बोला बोला मैं करूंगा चौथे को। 620 मिनट बोले आओ 5 चौथा 5वां में ऐसे 6ठा 7वां लेसना जसवी फलाना दिखना सारे मेरे 2 साथी और 10वां में पूरा 10 बैंक तो अंदर घुस के मारेंगे अपन लोगों के दोस्तों। डन बटालियन कमांडर खुद ही राइफल लेके लीड कर रहा। हमारा पहला इंडियन आर्मी का पहला अफसर ऐसा होगा जो खुद ही राइफल लेके लड़ाई के मैदान में गया था, कर्नल एम.पी. रविंद्रनाथ। The responsibility was on Major Vivek Gupta, who allowed Kumar to lead the LMG group of commandos. With strong enemy establishments on the hilltop, it was imperative for our forces to reach pretty close to the enemy before the surprise assault. जैसे ऊपर गए तो उनसे बोला कोबरा 415 टाइगर होगा मैं पास होगा सर। बोले कोबरा क्या पूछ रहा है? मैं बोला सर अभी फायर नहीं हो रहा, आपने फोर्स कर को थोड़ा ऊपर करवा दो। तो उसने भी फोर्स कर जितने भी सपोर्टिंग हथियार थे उनको ये तो रोलिंग जैसे ये तो रोलिंग इसे 1 मीटर ऊपर करवा दिया। फायर ऊपर से जा रहा है, हम और हमारी दोनों कंपनी नीचे से घुसना शुरू हो गया। While approaching the objective, the assault group came under effective enemy fire, raging from well-concealed sources. Under such constraints of heavy fire, the mind goes blank of its strategies and the body refuses to act for anything but self-protection. Even then, Kumar provided precise cover fire and the team of commandos charged towards the enemy bunkers. जो बैंकर था उसमें ऐसे कर लगी हुई थी, उसको फायर कर नहीं रही थी, तो उस पर मैं सोचा काला पत्थर है इसको पकड़ ले। उसमें जैसे मैंने ऐसे हाथ मारा दुश्मन की बरल मेरे हाथ में आई, मैंने अपनी तरफ जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया। तो पहले गोली मेरी हाथ लगी और 3 गोली मेरी सीने में लगी और 2 गोली मेरी AK-47 में, वो भी हाथ से छूट। Enduring tens of bullets and amidst hundreds being fired at him, undaunted and undeterred, this man went up, raging for all destruction of the enemy. Passing through heavy shelling by the artillery, getting into brutal hand combat, and even bayoneting, he advanced like a thunderstorm. वहां पर मेरे पिताजी की बात मुझे याद आई कि मेरे बेटा जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी भगवान नहीं करता, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी भगवान भी करता है। तो मैंने हैंड टू हैंड करने निकाला, उसकी पिन फाड़ी और तो अंदर ऐसे ठोक दिया करने और वहां लेटा उपराम जब फटा। रात को अंधेरे में भी मतलब गोली ठोक सकता हूँ, तगड़ा फायर। तो उसके LMG 750 गोलियों का उनका पूरा पिट्ठू ले लिया मैंने। और जैसे सीटी कटी ऊपर चढ़ा तो मेजर अनवर खान जो मेरे को 3-4 घंटे से गाली निकाला, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाले। मेरे मैं क्या कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा। और जैसे मुंह ऊपर चढ़ा मैं आप बोल कुत्ता तू या हम। मेजर अनवर खान मेरे को हिंदुस्तान का सिपाही पीठ में गोली नहीं मारता संभाल। और मैंने जैसे उसमें गोली फायर करी तो ये मेरी गोली एक ही फायर हुई, मेरी LMG में रोक पड़ी, वहां तो खाया। लेकिन मेरी जो गोली फायर हुई
उसकी पिस्टल में लगी या हाथ में लगी, उसने मेरे गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी, यहाँ इस जगह पर बेल्ट की लाइन में गोली लगी, पचीड़ उठा में गोली तो लगी, बेल्ट के अंदर से पूरा बेल्ट ऐसे बेल्ट बन जाता, यहाँ से लगी, यहाँ से निकली गई है पूरा एक गोली था वो। हाँ, पर बेल्ट ऐसा कैसा बंधा रही गोली है। 3 bullets on his chest. 1 pierced his arm with a broken body armor, missing shoes, torn clothes, and missing LMG. Kumar, with utter disregard to his personal safety, pounced over the enemy into a fierce hand combat. तो बोले मेजर अनवर खान बोले कोबरा तेरे सर्जिकल स्ट्राइक का बदला आज लूंगा, तेरे 16 ही डू करूंगा बोले मुआवजा। फिर तो उसने मेरे पर डाई मारी, मैंने उसका टेटुआ पकड़ा नीचे घुटता और फिर काल कमांडो टाइगर ठीक करते को बैठाते बोले आ मुझको अल्लाह तो बोल रहे यार, पर अल्लाह का बोला था तो वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी मुंडी को लेकर के वो बात माता इसे बोलते दोलोलिंग के ऊपर चढ़ा, बड़ी की सैटेलाइट मेरी वो दाढ़ी वाली फोटो काली डांगरी और वो ऐसा की ऐसी वो फोटो आ गई। तो उस फोटो से मतलब अमेरिकी सैटेलाइट से मुझे भारत सरकार ने जिंदा महावीर चक्र दे दिया, नहीं तो ये मनोप्राण। Every commander of the team endured multiple bullets and all were killed in action, with Kumar being the lone survivor bearing grave injuries. At 400 hours before the dawn of 13th July, the tricolor, empowered by the blood of our soldiers, was once again adorning the hill. Our heroes won back to Todaling. अभी रविंद्रनाथ जैसे ही आया और वो आया तो आकर के उसने मेरे सुनाया प्राउड माय सन, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आज कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी तुझे मुबारक हो मेरे बच्चे, तुझे मुबारक हो। जिन्होंने पूछते ही देश का प्रधानमंत्री मेरे 3 थप्पड़ मार के बोलता है वारे मेरे करबली तना 48 हमारे पाकिस्तान और 15 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक साहब मेरे पास गए, मुझे मिठाई खिलाई और मुबारकबाद दी मेरे कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी का पहला तोहफा मुझे जीवित महावीर चक्र से देश पूरा सम्मानित कर रहा है मेरे बच्चे के लिए, मुबारक हो महावीर चक्र। Winning the Battle of Todaling was crucial. This meant the enemy could be surmounted on, despite all odds and in all conditions. दुख की बात आज है कि साल बाद भी बड़ा दुख है मुझे कि मेरे एक भी साथी नहीं बचा। वो एक साथी को किसी का 10-20 गोली लगी, कोई 10 मिनट में, कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे। ऐसे मेरे साथी मुझे एक करके हमेशा के लिए छोड़ के चले। Even now, Naik Digenj Kumar remembers the loss of his buddies in war. It triggers a sense of disappointment while he recounts the sacrifice of our men, right from the 48 war to Kargil to our martyrs of the Galwan Valley.